Today I will start, okay, the next part of this chapter, that is the decimal. What I will start? Decimal. Okay. Yes, sir. Can anyone tell me what is decimal? सर जब है ना हम लोग जब किसी छोटे नंबर को बड़े डिजिट से डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट आता है सो डेसिमल में आता है। चलो क्वेश्चन दो। ओके राइट। वैभव सिंह क्या बोल रहा है? जो एक मिनट, वैभव सिंह क्या बोला? छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते, मतलब जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो, किससे? डिनोमिनेटर से। ये क्या देगा? डेसिमल देगा। ठीक है, यही बोले ना बेटा? यस सर। चलो अब देखो, सपोज करो जैसे 2/4, 2/4, यहाँ पे 2 क्या है बेटा? न्यूमरेटर। 4 क्या है? डिनोमिनेटर। और यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? छोटा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ये कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एम आई राइट? यस सर। ठीक है, देखो अब ये क्या होता है? 1/2, 2 कट गया, 1/2 होगा ना। अब 1 में 2 से भाग दो, क्या होगा? 1 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या करेंगे? सबसे पहले एक पॉइंट देंगे। जब यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जब क्वोशिएंट में पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो डिवाइजर है वो 10 के मल्टीपल में आ रहा है। Am I right or not? अब देखो इजीली डिवाइड कर सकते हो 5 टाइम्स। देखो इसका क्वोशिएंट क्या आया? 0.5 आया कि नहीं आया? तो वैभव कहना यही है कि जिसका न्यूमरेटर क्या हो बेटा? छोटा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, तो उसके क्वोशिएंट में डिसिमल आता है। लेकिन मैंने पूछा डिसिमल होता क्या है? मैंने सही बोला कि इफ वी डिवाइड a smaller number with a bigger number, the quotient will be in the form of decimal. Am I right or not? But my question is, what is decimal? What do you understand by decimal? That is my question. So decimal is a point. Decimal is a point. Yeah. Okay. Right. It is a point. But tell me, suppose this is the point. Is this a decimal? Sir, which is used in number. Yes. Means a number must be used before and after this point, then it becomes a decimal. If we only say a point is a decimal, then it is not right. Okay? Yes, sir. Okay? Means it, suppose 2.3, that means there is a number, there is a digit before this decimal, and there is a digit after this decimal. Then it becomes the decimal. But what is the significance of decimal? I'm talking about this. I'm asking you about the significance of decimal. Tell me anyone. Haji, can anyone tell me? No, sir. Tell me, 0.5, is it less than 1 or greater than 1? So less than 1. Less than 1. So decimal is always less than 1. Means it is always less than unity.
What I said? Decimal number used to represent number that is as smaller than the unit. तो डेसिमल का सिग्निफिकेंस क्या है, कहां पे हम यूज करते हैं? जब कोई नंबर हमको क्या हो, यूनिट से छोटा नंबर हो, यूनिट में किस लेस देन 1 हो, ठीक है, जैसे 0.5 ये क्या यूनिट से छोटा है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डायरेक्शन, मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर यूनिट. If a number we have to represent less than unit, we can represent that number with the help of decimal. Am I right? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. How can we say a number is less than unit? A number is less than unit when then comes the statement of Babel that when, sir, numerator is less than denominator, then the number will be, then their quotient is represented in the term of decimal, then the quotient or the part of the quotient will be less than 1. For example, 3.5, 3.3. Here, this whole number is not less than 3, less than 1. Whole number is 3.3 is not less than 3. But the part of this number, that is, we can write this number as 3 plus 0.3. Am I right or not? And 0.3 is also the part of this number, and this is less than 1. Means this is less than unity. Am I right or not? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है. Yes, sir. मैंने क्या बोला, देखो, अगर मैं बोलता न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होगा तो क्या होगा, ऑलवेज कोसेंट विल बी लेस देन यूनिटी. एम आई राइट और नॉट? जब भी क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो, जो उसका कोसेंट होगा हमेशा क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा. ठीक है, क्या होगा बेटा, लेस देन यूनिटी होगा. और जब भी हमको कोई स्मॉलर देन यूनिट को रिप्रेजेंट करना हो, वी विल टेक द हेल्प ऑफ डेसिमल. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हम लोगों ने क्या पढ़ा, डेसिमल यूज टू represent number less than unit. Okay, and for this situation numerator is always less than denominator, then the quotient will be less than unit. And then Yes, sir. quotient will be represented in terms of this one. Okay, but is it right for every situation?
But this is the only situation that hold good for the representation of a decimal. Now suppose 9 upon Yes, sir. 9 upon 4. Okay, 9 upon 4. Now tell me, can this number be represented in decimal? Yes, sir. But according to you, here numerator is equal to 9 and denominator is equal to 4. But in this situation, numerator is greater than 4. That means numerator is greater than denominator. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. But what you said? When I ask you about the decimal, what you said? That numerator is less than denominator. Then their quotient will be represented in the form of decimal. But here, numerator is greater than denominator. But the quotient of 9 by 4 is also represented in the form of decimal. Yes, sir. That means you are partially true. Yes. Am I right or not? Because Yes, sir. 9 divided by 4, 2 times 8, it will gives you 1.0, 2 times. Okay, 8, 5, 20. Am I right or not? 2.25. Yes, sir. The quotient of 9 upon 4 is 2.25. And this is also represented in the forms of decimal. Am I right or not? Yes, sir. Sir. Yes. Yes, Manav. Yes, Manav, tell me. Karthik, Khushbu, Bharti, Jyoti. Yes, ma'am. Yes, sir. तो अगर मैं ये बोलता हूं, अगर डिसिमल फाइंड आउट करना है तो ये कंडीशन यूनिवर्सली ट्रू होगा, दैट इज रॉन्ग. दिस इज पार्शियली ट्रू. Numerator can be greater than denominator or denominator can be greater than numerator. Both the fraction may be represented in the form of decimal. Am I right or not? Yes, sir. One thing you have to remember, that when the numerator is less than denominator, for that case the quotient is less than, the whole quotient is less than 1. The whole quotient is less than 1. 1. Okay, that means, and decimal is used to represent a number less than unit. That means when numerator is less than denominator, this type of fraction, the quotient of this type of fraction is also represented in the form of decimal. Am I right or not? देखो मैंने क्या बोला, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर में, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस का, ये कौन से टाइप ऑफ फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन का केस है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन का जो कोसेंट होगा, इट मस्ट बी लेस देन 1. एंड इन द मैथमेटिक्स, to represent a number that is less than 1, we have to take the help of decimal. Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. Till now, anyone have any problem? No, sir. No. Now, take another example where, for example, 9 by 4. In this example, the numerator is greater than denominator. Okay. But tell me,
the quotient of 9/4 is less than 1? Is it less than 1? No, sir. No. But some part of that number is less than 1. Yes, sir. Means, for example, when we divide 9 by 4, the quotient is 2.25. Am I right or not? Yes, sir. And this 2.25 can be represented in 2 plus 0.25. Yes, sir. And this is not less than 1. But the part which is less than 0.25. 1 is 0.25. Means the part of the quotient is less than 1. Am I right or not? Yes, sir. हाँ, इसको ऐसे बोल सकते हो कि जब हम लोग डिवीजन को परफॉर्म करें तो डिवीजन में उस डिवीजन के जिस पार्ट में डिवीजन के जिस पार्ट में डिवाइजर, सॉरी इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर, यस, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कैपिटल डी से डिनोट करता हूं, ठीक है? डिविडेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डी एंड डिवाइजर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी। तो जब हम किसी पार्ट ऑफ डिवीजन में, जब हम लोग डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लॉन्ग मेथड को, तो उस डिवीजन प्रोसेस में जिस पार्ट में क्या हो, मेरा डिविडेंड छोटा हो जाए डिवाइजर से, वहां पे क्या होगा? उसका कोसेंट 1 से कम होगा। वहां उस पार्ट का कोसेंट 1 से लेस होगा, ठीक है? और वहां से क्या होगा? डिसिमल में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आया? जैसे यहां पे देखो, जब 9 डिवाइडेड बाय 8 कर रहे हैं, सॉरी 9 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, तो 4 into 2 अभी क्या है? 9 है। टेल मी 9 is less than 4 or not? 9 is less than 4 or not? No. नहीं है। नो सर। 9 is not less than 4. That means No, sir. that means this number cannot be represented in the form of division, in the form of decimal. 4 into 2, that is 8, and 9 minus 8, that is 1. Am I right or not? Sorry, 2. 9 minus 8, that is 1. Am I right? Now tell Yes, me, sir. in the second step, इसी डिवीजन प्रोसेस के सेकेंड पार्ट में क्या रिमाइंडर क्या आया? 1. यस सर। अब इस 1 में क्या करना अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं? तो अब क्या हो रहा है? वैभव के द्वारा दिया हुआ स्टेटमेंट कुछ सही साबित हो रहा है कि नहीं? कि जो ये है, ये क्या बेटा? अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिविडेंड और ये बन जाएगा डिवाइजर। तो डिविडेंड क्या है? 1 और डिवाइजर क्या है? 4। इस कंडीशन डिविडेंड इज स्मॉलर देन डिवाइजर है कि नहीं है? है। तो इसका कोसेंट क्या होगा? डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, मतलब इसका कोसेंट क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और देखो ये क्या हुआ, यहां से 1 से छोटा आया। यस सर। समझ में आया? यस सर। डिलीट कर दें। तो Yes, हमेशा sir. याद रखना, जब भी क्या हो हमको यूनिट से छोटा को रिप्रेजेंट करना। जब हम लोग प्लेस वैल्यू को पढ़ते थे, ठीक है, तो इसको मिटा दे। मानव, यस सर। ज्योति, खुशबू भारती, Yes, sir. समझ में आया? निहारिका भारती, Yes, sir. क्यों कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? खुशबू भारती लिख रही हो, मिटा दूं? फास्ट, बी फास्ट।
बिता दूं? हाँ मानव, यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब एक चीज मैं बताने जा रहा हूँ। जब मैं प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है बेटा, इससे पहले एक यस सर। लो डिसमल बहुत जल्दी टाइम खत्म होता है। डिसमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम is also known as base 10 system। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम को क्या बोलते हैं? बेस 10 सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? सपोज करो आपने क्या देखा था जब हम लोग डिवाइड किए थे 1 डिवाइडेड बाय 2, कैन वी डिवाइड? क्या हम इसमें 1 में 2 से डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, यस यस सर, कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए बेटा? सर। सर देखो यहाँ पे पहले डेसिमल एक डिसमल दे रहे हैं, यस सर, फिर तो हम 0 देंगे। इसमें Zero। क्या करते हैं? 0 देने का मतलब क्या है? 1 में हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। Am I right or not? यस सर। यस सर। जब इसके आगे 0 लगा रहे हैं, एक्चुअली ये हो क्या रहा है? 1 into 10 हो रहा है, यही तो हो रहा है ना? यस सर। तो क्या कर रहे हैं? जब हम कोसेंट में डिसमल लगा रहे हैं, उसके डिविडेंट में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या 0.5 आया? हाँ? यस सर। अब यस देखो सर। सपोज करो 0.05 है, ये क्या है? डिसमल सिस्टम है। तो यस सर। ये जो डेसिमल को हम इंट्रोड्यूस किए थे, कैसे किए थे? मेरा नंबर तो 1 था ना, इसमें मैंने क्या किया? 10 को मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब है कि जब मैं यहां से डिसमल को हटाऊंगा, रिमूव करूंगा, कोसेंट में से डिसमल को रिमूव करूंगा, बाई 10। उसको क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा। चीज समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। मानव, हिमांशु, ज्योति, यस सर। खुशबू, निहारिका, समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया। तो क्या हुआ? एक्चुअली देखो मैंने कुछ नहीं किया। देखो 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, यहाँ पे कहीं तो डिसमल है नहीं। अब ये क्या है? यूनिट से छोटा नंबर को रिप्रेजेंट करना है कि नहीं करना है? तो इसके लिए क्या करना Yes, पड़ेगा? sir। यहाँ पे हम लोग और यूनिट से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ डेसिमल। जब हमने यहाँ पे डेसिमल Yes, लगाया, sir। कोसेंट में डेसिमल लगाया, हमने क्या किया? जो उसका डिविडेंड था उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो हुआ। अब बताओ जब हम कोसेंट से डेसिमल को रिमूव करेंगे तो क्या मैं उसके, ये देख रहे हो, डिविडेंड में 10 से डिवाइड करेंगे कि नहीं करेंगे? If you Yes, sir। remove the decimal, can we multiply the dividend with 10 or not? What I tell you, to introduce the decimal in the quotient, we have to multiply the dividend with 10. Okay? जब हमको क्या करना है? डेसिमल को क्वोशेंट में लाना है, हमने क्या किया था? इसके डिविडेंड को 10 से मल्टीप्लाई किया था। Am I right or not? अब Yes, बताओ sir। जब हमको यहां से डेसिमल को रिमूव करना हो क्वोशेंट में से, क्या मैं
डिविडेंड में 10 से डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। तो 10 डिवाइडेड बाय 10 क्या होता है? 1 आता है। तो मेरा Yes, क्वेश्चन sir. तो एक्चुअली में 1 ही था, सॉरी मेरा डिविडेंड तो 1 ही था। एम आई राइट और नॉट? Yes, sir. तो यहाँ पे Yes, sir. यहाँ पे क्या होगा? इसी तरह कोई डिवीजन परफॉर्म किया गया होगा जिसमें क्या हुआ? डेसिमल इंट्रोड्यूस हुआ। जब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे, जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, क्या मैं 10 को इंट्रोड्यूस करूंगा कि नहीं करूंगा? यस सर। करूंगा ना? देखो तो यस अब सर। ये नंबर क्या, जो 0.5 है, ये नंबर क्या हो गया? 5/10 हो गया। सर 5। यस सर। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यस सर। Tell me, Yes, sir. बेस में क्या है? बेस मतलब क्या? When I talk about the base means denominator. What is the meaning of the base? Base means denominator. Am I right or not? हाँ जी वैभव, Yes, sir. समझ में नहीं आया? सर बेस वाला थोड़ा नहीं आया। अरे बेस क्या होता है? किसी भी चीज का निचला पार्ट। अब ये 5/10 है, इसका सबसे निचला पार्ट क्या है? नीचे क्या है? 10 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो इसी यस सर, आ गया समझ में। इसी डिनोमिनेटर में देखो, बेस में क्या है? 10 है। यस सर। तो इसलिए जो डेसिमल सिस्टम होता है उसको हम लोग बेस 10 सिस्टम भी बोलते हैं। इफ यू रिमूव द डेसिमल, for removal of decimal you have to introduce 10 or multiple of 10 in the base. Am I right or not? यस सर। If you Yes, want sir. to remove the decimal, you have to multiply 10 or multiple of 10 in the base. That means in the denominator. Okay? समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो आया। एक चीज और यहां से ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भी डेसिमल सिस्टम होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम होगा, क्योंकि ये क्या है? बेस ऑफ 10 सिस्टम भी कहा जाता है। हमेशा याद रखो, अगर किसी नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना हो इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, उसका बेस क्या होगा? या तो 10 होगा या मल्टीपल ऑफ 10 होगा। जैसे 1/100, this 100 is multiple of 10 or not? Yes, sir. Yes. Then this number can also be expressed in terms of decimal. This number also can be expressed in terms of decimal. And how? 0.001. Am I right or not? For example, 1 divided by 100. ठीक है? यही तो है। 0.01। सॉरी, हाँ 0.01 होगा बेटा। ठीक है, अब देखो, जब हम इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे तो 1 में 100 से डिवीजन देना पॉसिबल है नहीं है। हम क्या करेंगे? यहाँ पे डेसिमल को रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमल। क्योंकि अगर हम 1 में 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? यूनिट से छोटा नंबर आएगा। एम आई राइट और नॉट? यस सर। और यूनिट से छोटे नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं? डेसिमल का। और यहाँ पे एक डेसिमल दिया तो यहाँ पे क्या देंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या 10 100 से छोटा है? हाँ है। 10 क्या है? 100 से छोटा है। मतलब अभी भी क्या होगा? अगर इसमें डिवीजन करें तो ये क्या होगा? यूनिट से छोटा होगा। क्या फिर से मैं यहाँ पे डेसिमल इंट्रोड्यूस करूंगा? नो सर। नो सर। क्या करेंगे? यहाँ पे जीरो को इंट्रोड्यूस करूंगा और यहाँ पर भी एक जीरो इंट्रोड्यूस करूंगा। समझ में आया? अब क्या यस होगा? सर। 1 टाइम्स में कट जाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या देखा? ये 0.01 है। अब यहां से अगर तुम डेसिमल को रिमूव करो
तो क्या करेंगे, एक डेसिमल को रिमूव करो, 900 क्या आएगा? 100 इज इट राइट और नॉट? यस सर। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ यहाँ चीज देख रहे हो, आया। Yes, sir. डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना बेस में क्या है, 0 है, 0 है कि नहीं है? yes Yes, sir. हाँ, एक्चुअली में ये 0 का मतलब क्या है, 10 into 10